Which of the following does not describe the zamindari system in India? Option A, zamindars were owners of the land and the farmers were the tillers of the soil. Option 2, zamindars used to pay any amount of tax to the state. C, zamindars used to charge high amount of rent from the farmers. And option D, amount of the rent was not fixed. And correct answer is zamindars used to pay any amount of tax to the state. Question number 2, what was the state of Indian इंडस्ट्रीज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? मतलब आज़ादी के समय में भारतीय उद्योगों की स्थिति क्या थी? द कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑप्शन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन जीडीपी वाज लो. ऑप्शन 2, हैवी टैरिफ्स वर इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. ऑप्शन 3, रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड टू इंश्योर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया. ऑप्शन 4, industries started developing during the British rule. And your answers are, answer इसमें first and second both are true. The contribution of modern industries in GDP was low. Very correct. And option 2, heavy tariffs were imposed on the export of Indian handicrafts, or slowly it affected the handicrafts because it became costlier in the European market. So no buyers were available to them, Indian handicrafts. Question number 3 है, India entered dash stage of demographic profile after 1921. इसको ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड भी कहते हैं. तो 1921 के बाद इंडिया कौन से स्टेज में पहुंचता है? तो आंसर इज सेकेंड स्टेज में. एसर्शन क्वेश्चन है. एसर्शन, इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस्ड low productivity and production. Reason, the land holdings were scattered and divided into small pieces. Both assertion A and region R are true, and region R is the correct explanation of assertion A. Both assertion A and region R are true, and region R is not the correct explanation of assertion A. Assertion A is true, but region R is false, and assertion A is false. And here correct answer is both assertion A and region R are true, and region R is the correct explanation of assertion A. So Indian agriculture experienced low productivity and production. ये बिल्कुल सही बात है. And the land holdings were scattered and divided into small pieces. ये भी सही है, इसका रीजन ये भी है. दूसरा हमारा, at the time of independence overall literacy level of India was less than 16%. Region, at the time of independence infant mortality rate was about 218 per 1000. और इसका correct answer, what is the correct answer? Both assertion A and region R are true, and region R is not the correct explanation of assertion A. At the time of independence overall literacy level of India was less than 16%. ये तो बात सही है, और ये भी बात सही है, लेकिन उसकी व्याख्या ये सही नहीं है. लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट केवल कम होने से नहीं होता है, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी उसके लिए कॉज होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउ मेनी सेक्टर्स इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिया का जो है कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है? तो ऑप्शन है हमारा 3, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ द सर्विस सेक्टर? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये. टर्शियरी सेक्टर भी कुछ बच्चे गलत कर देते हैं. कल ही मैंने क्लास में क्वेश्चन किया था, इंडस्ट्री को बच्चे टर्शियरी सेक्टर बता रहे थे, जबकि इंडस्ट्री है सेकेंडरी सेक्टर. व्हाट वाज द नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? स्टैगनेंट, बैकवर्ड, अंडर डेवलप्ड, ऑल ऑफ दीज. तो ये स्टैगनेंट है, ये तो क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है. बैकवर्ड भी, अंडर डेवलप्ड भी है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस. व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी? एंड 44 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर. व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस?
0.9%, 0.5%, 1.2%, 3%, 0.5% is the correct answer. Which of the following activities is included in the primary sector? Agriculture, second services, industries, all of these. Agriculture is the correct answer. In which of the following sectors is manufacturing activity included? मैन्युफैक्चरिंग को किस में डालेंगे? प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, ऑल ऑफ दिस सेकेंडरी में. सॉरी. वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी इस्टेब्लिश? कल ही क्लास में डिस्कस किया था. जमशेदजी सोमानजी टाटा 1907, साक्षी मानगो, जे.आर.डी. टाटा की भी चर्चा की थी. फर्स्ट पायलट ऑफ इंडिया, टाटा एयरलाइंस पहले था, गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था. ये सब सारी बातें कल क्लास में चर्चा हम लोग किया था. तो जमशेदजी टाटानगर कहते हैं, झारखंड में है इस समय. व्हाट इज द टैक्स और ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स कॉल्ड? क्या कहा जाता है? टैक्स और ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? टैरिफ इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर ऑक्यूपेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? इंडस्ट्री, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, नन ऑफ दिस. एग्रीकल्चर इज द करेक्ट आंसर. तो आज के लिए बस इतना ही करता हूँ. इसके बाद हम अगला लेसन जो होगा हमारा होगा इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990.